तरीन खबर आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला सुनाने के लिए जजेस अपनी नशिस्तों पर पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट नंबर 1 में यह फैसला सुनाया जा रहा है। बात कर लूं, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी हमारी मावनत की। और फिर मैं बिलखुसूस पाकिस्तान टेलीविज़न का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने ये हमारा जो पायलट प्रोजेक्ट था उसको कामयाब बनाया। और आप में से किसी ने फरमाया था कि शायद हमारी रेटिंग क्रिकेट से बेहतर हैं, तो शायद इसको हमें डिसकंटिन्यू करना पड़े और शायद अपनी करना हो। अच्छा, ये ज़रा सा टेक्निकल था, इसलिए ज़रा वक्त लगा। तो मैं पहले आज का वो जो आज की बात हुई वो पढ़ देता हूँ और फिर आज का ऑर्डर। The Attorney General of Pakistan has concluded his submissions in support of the constitutionality of the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, within brackets, the Act. Learned Mr. Hassan Irfan Khan for the petitioner and constitution petition number 19/2023. Learned Mr. Mohammad Ikram Chaudhary for the constitution petition number 20 of 23. And learned Mr. Abid S. Zubairi, President of the Supreme Court Bar Association, exercised their right of reply and were heard. These petitions were heard by the full court on 18 September, 3rd, 9th, 10th, and 10th October 2023 and are today disposed of in terms of the order of the court. And this has been signed by all of us. And now I shall read the order of the court. For reasons to be recorded later, these petitions are decided as under. And if you don't get it, it's all right. We'll have it uplinked on the website today. Subject to paras 2 and 3 below, by a majority of 10 to 5, within parentheses, Justice Ijazul Ehsan, Justice Munib Akhtar, Justice Sayyid Mazahir Ali Akbar Naqvi, Justice Aisha A. Malik, and Justice Shahid Wahid dissenting, bracket close, the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 is sustained as being in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and to this extent the petitions are dismissed. Paragraph 2. By a majority of 9 to 6, Justice Ijazul Ehsan, Justice Munib Akhtar, Justice Yahya Afridi, Justice Sayyid Mazahir Ali Akbar Naqvi, Justice Aisha A. Malik, and Justice Shahid Wahid dissenting, bracket closed, subsection 1 of section 5 of the Act, within brackets, granting a right of appeal prospectively, is declared to be in accordance with the Constitution, and to this extent the petitions are dismissed. Paragraph 3. By a majority of 8 to 7, within bracket, Chief Justice Qazi Faiz Isa, Justice Sardar Tariq Masood, Justice Sayyid Mansoor Ali Shah, Justice Aminuddin Khan, Justice Jamal Khan Mandokhel, Justice Athar Minella, and Justice Musarrat Hilali dissenting, subsection 2 of section 5 of the Act, within brackets, granting a right of appeal retrospectively, is declared to be ultra vires the Constitution, and to this extent the petitions are allowed. So I hope that clarifies the matter, and we tried to do it in the shortest possible time, and you have the benefit of the order of the court, and now we will take time to write the detailed reasons. Once again, ladies and gentlemen, thank you very much, and members of the press, thank you to them as well from all of us, hopefully for accurate reporting. Very grateful. Now well-deserved rest I will get. मुलाहिजा किया और कबूल कर ली गई हैं बेशतर दरखास्तें। सिर्फ रेट्रोस्पेक्टिव जो यानी कि माजी पर इसका निफाज, इसको मुस्तरद किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, नुमाइंदा जियो न्यूज़। क्या ये एक्ट अब नाफिजुल अमल होगा? तफसील बताइएगा अब्दुल क़य्यूम। जी हाँ, बिल्कुल। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जो चैलेंज किया था उसमें 8-7 का अक्सरियती फैसला आया है, और ये फैसला मुख्तलिफ सेक्शंस के हवाले से इख्तलाफी है, जबकि जो है वो मेजॉरिटी जो है वो इस हक़ में है कि ये कानून, आइन और कानून के मुताबिक है, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा और 7 जज साहिबान शामिल हैं। जबकि जो सेक्शन 3 के हवाले से जो है वो एक और तफरीक है, और वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उस पर
10 और 5 की तफरीक है, जबकि एक और सेक्शन के हवाले से 9 और 6 की तफरीक है। तो इस तरह से मजमूई तौर के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून है वो अक्सरियती फैसला के ज़रिए से मंजूर कर लिया है। और अब ये अच्छा कयूम अपने नाज़रीन के लिए 20 अप्रैल से अपने नाज़रीन के लिए आसान करके हम समझा देते हैं। जो हमारी समझ में आया है वो ये है कि 10-5 से फैसला किया गया है कि 3 रुकनी जो पैनल है वो अब फैसला करेगा कि बेंचेस कैसे बनने हैं। इसके हक में 10-5 का फैसला आया है, ऐसा ही है, दुरुस्त है? जी हाँ, बिल्कुल, ये 10-5 का फैसला है, जिसमें इस बात को आपको पता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो कानून है उसमें एक कमेटी बनाई गई थी, क्योंकि पहले ये सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार था कि वो बेंच बनाएगा और मुकदमात की समाअत करेगा। तो सेक्शन 2 जो है वो इस हवाले से ये है कि कमेटी ऑफ जजेस, जो कि अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान और 2 सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल होगी, वो इसका फैसला करेगी बेंचेस की तश्कील के हवाले से। अच्छा, दूसरा बताइएगा, 9-6 के हवाले से ये फैसला किया गया है कि अपील का हक दिया जाएगा। अब अपील का हक मिल गया है सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले के खिलाफ पहले नजरसानी की जा सकती थी, अब 9-6 के फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अपील की जा सकेगी। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि 184(3 यानी अज खुद नोटिस के तहत या जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन थी उसके तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर कोई फैसला आ जाता था, जैसे कि पनामा का आया या तायात दहली का आया, तो उसमें रिव्यू होता था, अपील का हक नहीं होता था। अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि कानून ने ये कहा कि 184(3 के तहत जब कोई मुकदमा आएगा 3 जजेस पर मुश्तमिल कमेटी जो है वो इस बात का पहले फैसला करेगी कि आया ये अवामी मफाद में और बुनियादी हकूक़ के निफाज का मामला है, तो फिर वो कम से कम 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाएगी जो इस मुकदमे की समाअत करेगा। और इसी में 184(3 के अंदर अपील का हक दिया गया था, और अपील का हक जो है वो 6 जज साहिबान ने कहा है कि नहीं इस तरह से दिया जा सकता है, जबकि 9 जज साहिबान ने कहा है कि अपील का हक जो है वो दिया जा सकता है। एक और चीज़ अब्दुल करीम सिद्दीकी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या अब ये जो हक था कि माजी के फैसलों पर इसका अपील का हक दिया जाना है या नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव इसका इतलाक, उसको मुस्तरद कर दिया गया है। बहरहाल अब माजी के फैसलों पर अपील का हक नहीं मिलेगा, ऐसा ही है? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ जो दरखास्तें थीं, 5 समातें हुई, उनको सुना गया, मुख्तलिफ तरफ से दलाइल दिए गए जो दरख्वास्त गुजार थे, और आज ये फैसला सुना दिया गया है। 10-5 से ये फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ जो दरखास्तें हैं वो मुस्तरद कर दी गई हैं, ये एक्ट बरकरार रखा गया है। अब्दुल कयूम हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल कयूम, आप हमें बता रहे थे, आपसे सवाल किया था कि जो फैसले का इतलाक है वो माजी के मुकदमात पर भी होगा या आने वाले मुकदमात पर ही इसका इतलाक होगा? हम कोशिश करेंगे कि उनसे दोबारा रब्ता करें, लेकिन जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है अपने नाज़रीन को हम बताएं, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था वो नाफिज किया गया था, जिसे साबिक चीफ जस्टिस ने स्टे कर दिया था, रोक दिया था, और अपने दौर में उसकी उन्होंने समाअत नहीं की और उसे मुअत्तल ही रखा गया। अब वो एक्ट बहाल हो गया है और 10-5 की जो अक्सरियत है, 10 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, एक फुल कोर्ट ने इसकी समाअत की, काफ़ी समाअतें इसकी हुई, 10 जज साहिबान ने यह हक दिया है कि 3 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सीनियर पीनल जज और सीनियर तरीन जज, तीनों मिलकर जो बेंचेस हैं उसकी तश्कील किया करेंगे। एक्ट इसके हक में था, एक्ट इसी के, और इसको अब तस्लीम कर लिया गया है, इस एक्ट को, इस हक को, कि 3 जज साहिबान सीनियर तरीन फैसला करेंगे। साथ ही जो अपील का हक था 184(3 के तहत, वो पहले हासिल नहीं था, इस एक्ट में दिया गया था, इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने 9-6 से तस्लीम कर लिया। बिल्कुल। अब्दुल कयूम हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल कयूम, आपसे यही सवाल है कि फैसले का इतलाक माजी के मुकदमात पर भी होगा या आने वाले मुकदमात पर होगा? जी, इस पर जो है वो 8-7 के तनासुब से अपील के हक के माजी के इतलाक की मुखालफत की गई है, यानी कि 8 जज साहिबान जो हैं उन्होंने ये कहा है कि जो अपील का हक मिलेगा इस कानून के तहत, उसका इतलाक माजी से नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि आज के बाद से जब कानून का इतलाक होगा, उसके बाद आने वाले जो फैसले हैं उनके ऊपर 184(3 के फैसलों के तहत अपील का हक जो है वो होगा। जबकि माजी के जो से इतलाक के हवाले से चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर जो 7 जज साहिबान हैं उन्होंने इसकी हिमायत की है। तो इस तरह जी अब्दुल करीम, आपको सुन सकते हैं, आप जारी रखिए। जी,
वजी असल में आप बार बार सिग्नल जो है वो कट रहे हैं, तो अब इस तरह से मजमूई तौर के ऊपर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 10-5 की अक्सरियत से फैसला सुनाया है। और इस फैसले के बाद जैसे कि अपील का हक था उस पर उसके माजी से इतलाक़ के हवाले से जो है वो अक्सरियत है कि माजी से इसका इतलाक़ नहीं होगा, यानी कि अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, क्या हम ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट के कानून साजी के हक को तस्लीम कर लिया गया है? आइन के नीचे जो 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं उसमें सुप्रीमेसी को तस्लीम किया गया पार्लियामेंट? जी हाँ, बिल्कुल। असल में झगड़ा यही था कि आया पार्लियामेंट को ये इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से वो कोई कानून साजी कर सके। तो इस कानून साजी के हक़ के अंदर, इस पार्लियामेंट के इख्तियार के हक़ के अंदर 10 जज साहिबान जो हैं वो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को ये इख्तियार है कि वो कानून साजी कर सकती है। आइन के आर्टिकल 191 के तहत, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स जो हैं वो सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ होंगे, और इसी बात के ऊपर जो है वो खासा इख्तलाफ था। और ये जो इख्तियार है कि जिसके तहत यानी आइन के आर्टिकल 191 की, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, आइन के आर्टिकल 191 की तशरीह भी कर दी गई है कि उसमें जो आइन और कानून है, लॉ है, वो लॉ वो पार्लियामेंट बनाएगी। यानी ये तय हो गया है वंस एंड फॉर ऑल, और इस फैसले के खिलाफ जो कि 10-5 का है अब कहीं अपील नहीं की जा सकती। जी हाँ, ये एक वही ट्रिकी क्वेश्चन था, और इस हवाले से जो डिटेल जजमेंट आएगी उसके अंदर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से क्या कहती है, क्योंकि राइट ऑफ अपील जो है वो हुआ है। और आज इसके ऊपर भी बड़ी, आखिर में अगर आपको याद हो तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बहस हुई थी, और उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा था, तो फिर मैं ये तस्लीम करता हूँ कि मैंने ये फुल कोर्ट बनाकर गलती की है, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी जो है वो उनका ये कहना था कि जो इस दरख्वास्त गुजार है, अगर इसकी अपील होगी और फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए तो फिर अपील कहाँ जाएगी। उसका जो है वो अदालत ने यही कहा था कि जब एक फ़ाइनल आर्बिट्रेशन हो जाएगी इस हवाले से, तो फुल कोर्ट जो है वो तभी बनाया गया। और इस हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि जब मैंने ये फुल कोर्ट बनाया था तो मेरे फाजिल कोलीग्स के अंदर किसी ने भी इस बात की मुखालफत नहीं की थी कि अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आता है जिसके तहत जो है वो 7 जज साहिबान अगर बेंच सुने तो फिर ही अपील जो है वो 8 जज साहिबान सुन सकते हैं। तो इस तरह से ये फुल कोर्ट को रिडंडेंट कर दिया गया है। तो उस पर जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा था कि मैंने ये बनाया है तो मैं इसकी गलती तस्लीम करता हूँ, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जब ये फुल कोर्ट तश्कील दिया गया था तो किसी लर्नेड जज जो है उसने इस फुल कोर्ट बनाने की मुखालफत नहीं की थी, और वो इस बात से आगाह थे कि इसका क्या होगा, इसका वकील इस हवाले से अपील का। और इस हवाले से जो है वो जज साहिबान जो अक्सरियत थी फैसला लिखने वाले जज साहिबान हैं, उनका ये कहना था कि फिर ये फुल कोर्ट ही जो है वो उसकी अपील सुनेगा, और इस तरह से ये फुल कोर्ट का फैसला जो है वो एक हतमी फैसला जो है वो तस्वुर होगा। जी, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हमें अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला सुना दिया गया है और इस एक्ट को बरकरार रखने का फैसला किया गया है। 10-5 से ये फैसला आया है, इस एक्ट को बरकरार रखा जाएगा, जबकि जो 184(3) के तहत जो मुकदमात के फैसले सुनाए गए उस पर या जाएंगे उस पर अपील का हक दिया गया है। इस हवाले से 9/6 से फैसला सुनाया गया है। अब इस फैसले का इतलाक माजी से होगा। 184(3) के तहत जो मुकदमात हैं अब इसका इतलाक माजी से होगा या आने वाले मुकदमात पर इसका इतलाक होगा। इसका फैसला 8/7 से ये रिजेक्ट कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जो मामला पीछे हो चुका वो हो चुका। आज से जब ये एक्ट नाफिज हो गया, क्योंकि ये एक्ट मुअत्तल किया हुआ था साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, और इसी के हवाले से ये फुल कोर्ट बैठी और उसने समाअत की और कई समाअतों के बाद आज ये फैसला सामने आया। तो माजी में जो फैसले 184(3) के तहत दिए गए अब उनके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में जब भी कोई खुद नोटिस लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तो उस पर अपील का हक हासिल होगा। इससे पहले सिर्फ रिव्यू या नजरसानी का हक हासिल था, जो कि जिसका स्कोप बहुत ही छोटा होता है। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी अगर हमारे साथ मौजूद हैं तो हम उनसे बात करना चाहेंगे और उनसे पूछना चाहेंगे अपील के हक के हवाले से। हमने देखा कि जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुजाहिर नकवी, ठीक, अब्दुल क़य्यूम आप हमारे साथ मौजूद हैं, सुन सकते हैं हमें? जी जी बिल्कुल, आप
अच्छा अब्दुल करीम सिद्दीकी, दो सवाल हमने करने हैं। एक तो ये कि जो 5 जजेस हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, जस्टिस आयशा, जस्टिस शाहिद वहीद और इसके साथ जस्टिस याहिया आफरीदी ने भी अपील का हक मिलने की मुखालिफत की है। अक़लियती जजों में शामिल हैं जिन्होंने फैसले से इख्तिलाफ किया है। साथ ही ये बताइएगा, जब अपील का हक मिलेगा तो वो मुख्तलिफ बेंच होगा, जैसे कि एक्ट में लिखा है, उससे बड़ा बेंच होगा जिसने फैसला सुनाया है? जी हाँ, बिल्कुल। ये दो चीज़ें बड़ी दिलचस्प हैं इसमें वजी। एक तो ये है कि जो कानून है वो उस दिन से लागू होगा जिस दिन से वो आया है, यानी कि अब कानून का इतलाक जो है, अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मेजॉरिटी ओपिनियन से इस कानून के हक के अंदर आप ये कह रहे हैं, बहुत अहम खबर दे रहे हैं कयूम, हम आपको रोक रहे हैं, आप बहुत अहम खबर दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जिस दिन ये कानून आया उस दिन से नाफिजुल अमल होगा। बताइएगा हमारे नाज़रीन को। जी हाँ, बिल्कुल। ये कानून जो है वो उस दिन से लागू होगा और ये बड़ी अहम बात है कि आपको याद होगा कि उसके बाद 8 रुकनी बेंच जो है उसने इस कानून को स्टे कर दिया था और फिर वो उसके बाद फुल कोर्ट बनी और फुल कोर्ट ने जो मुशावरत की हद तक जो है वो हुक्म इम्तना खारिज कर दिया था और मुशावरत से बेंचेस तश्कील पाना शुरू हुए 18 सितंबर के बाद से। लेकिन पिछले 6 माह तक, यानी कि अगर देखा जाए तो कानून जो है आता है 20 अप्रैल से, तो 20 अप्रैल के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 184(3) के अंदर फैसले आए हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इस कानून के तहत इस फैसले के बाद 20 अप्रैल के बाद आने वाले जो सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद 184(3) की जुरिस्डिक्शन में फैसले हैं उनके अंदर अपीलें जो हैं वो दाखिल की जा सकेंगी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उसके बाद कौन कौन से अहम फैसले आए हैं। उन फैसलों के अंदर एक जो बात है, एक तो याद होगा आपको कि नैब तरामीम का केस है और नैब तरामीम का केस 26 अप्रैल को जब दोबारा समाअत हुई थी तो उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये वाज़े किया था और उसकी वजह से समाअत मुलतवी हुई थी और फिर उन्होंने अपने इस फैसले के अंदर लिखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आने के बाद फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, बसूरते दीगर इस अदालत के फैसले के हवाले से शकूक व शुबहात पैदा होंगे। तो अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि एक नैब तरमीम का केस तो पिछले 15 माह से चल रहा था, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट नाफिजुल अमल होता है 20 अप्रैल से। तो उसके बाद अब फिर जो है वो फैसला जो आया वो आया उस वक्त जबकि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून आज के फैसले के तहत रूबा अमल था। तो इस तरह से नैब तरमीम के हवाले से जो है वो एक रिव्यू अपील का हक जो है वो मिल जाता है। फिर उसी तरह से जो इलेक्शन एक्ट, आपको याद होगा 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के अंदर इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था और इस वक्त जजमेंट एंड रिव्यू एक्ट आया था और उसके साथ ही जो है ये स्टे हो चुका था। तो अब जो है वो गो के उसकी रिव्यू जो है वो डिसमिस किया जा चुका है। अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि वो उसके बाद ऐसे फैसले जिनका रिव्यू डिसमिस हो चुका है वो इसमें आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन आज भी समाअत के दौरान ये बात बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर कही गई थी कि अगर ऐसे फैसले जो 184(3) में हुए और उनका रिव्यू जो है वो डिसमिस हो गया तो वो इस कानून की ज़द के अंदर नहीं आएंगे और वो उनको शायद अपील का हक नहीं होगा। अब इसीलिए माजी से अगर ये रास्ता खोला जाता तो फिर बहुत सारे ऐसे फैसले थे जो कि फ्लड गेट एक शुरू होता। तो इसलिए इस कानून का इतलाक जो है वो आइंदा के लिए होगा, मुस्तकबिल के लिए होगा। लेकिन मुस्तकबिल कब शुरू होगा? मुस्तकबिल उस वक्त से शुरू होगा जब ये कानून रूबा अमल होगा, क्योंकि कानूनी तौर के ऊपर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो 20 अप्रैल से रूबा अमल है। और आपको याद होगा आप हमें तफसील से आगाह करे थे, आपकी तरफ दोबारा भी आएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून बैरिस्टर अली जफर साहब और सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार हामिद मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अली जफर साहब, आप ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, 10/5 से इस एक्ट को बरकरार रखा गया है, पार्लियामेंट के कानून साजी के हक को तस्लीम किया गया है, इख्तियार का ही सवाल था बेसिकली, तो आपका रद्द-ए-अमल? जी देखें, एक्सपेक्टेड था, यही लगता था क्योंकि इसकी लाइव नशरियात हो रही थी इस केस की, तो ये तो सामने नजर आ रहा था कि मेजॉरिटी फैसला करेगी कि इसको ये दुरुस्त है कानून। ये कानून बेसिकली अगर आप उसको मेरिट्स पे देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह का कानून होना चाहिए जिसके अंदर अपील भी जायज़ है, जो अपील देनी चाहिए, अपील का हक होना चाहिए। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जो इख्तियारात हैं वो अगर शेयर कर लें उनको अपने 2 कॉलीग्स के साथ, सीनियर कॉलीग के साथ, तो इसमें भी कोई किसी को नहीं होना चाहिए इससे एतराज़। तो उस लिहाज से कानून दुरुस्त था। लेकिन मेरा ख्याल है जो बहस हो रही थी ज़्यादातर वो ये थी कि ये कानून किस तरह नाफिज किया गया,
क्या ये आईनी तरमीम के साथ होना चाहिए था या ये आम कानून के जरिए भी ऐसी अमेंडमेंट हो सकती है, ऐसा कानून बन सकता है। तो अब फैसला आ गया है, उससे 2-3 चीजें बड़ी जाहिर हो गई। नंबर 1 कि सबसे बालातर आइन है। नंबर 2 आइन की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। नंबर 3 आइन के अंदर रहते हुए, आइन के तकाजे पूरे करते हुए अगर पार्लियामेंट कानून बनाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट उसको उस पर इम्प्लीमेंट करने का पाबंद है, चाहे वो कानून सुप्रीम कोर्ट के अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बारे में क्यों ना हो। और चौथी चीज ये कि अल्टीमेटली अगर ये पार्लियामेंट एक कानून ऐसा पास करता है जो कि आइन के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट के पास हक है कि उस कानून को वो खत्म कर दे। तो इस लिहाज से जजमेंट दुरुस्त है, मेरा ख्याल है अच्छी जजमेंट है। आप उसे वेलकम करते हैं, आप इसे वेलकम करते हैं। सैयद अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून। इसी दौरान साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब ने हमें ज्वाइन किया। इरफान कादिर साहब बहुत शुक्रिया आपका। हम आपकी जानिब आते हैं, हामिद मीर साहब हमारा इंतजार करें। हामिद मीर साहब, आज का ये फैसला वंस एंड फॉर ऑल सेटल हो गया है, अब इसके खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती कि 191 आइन का आर्टिकल 191 में जब कहता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, तो लॉ जो है वो पार्लियामेंट बनाएगी और उस पर अब सुप्रीम कोर्ट भी अमल दरामद करेगी। देखें, असल में तो अहमियत उस पार्लियामेंट के कानून की है जिसके खिलाफ अपील दायर की गई थी, और अगर अपीलें जो हैं उनको मुस्तरद कर दिया गया है तो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज समेत जो सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस हैं, उन्होंने दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जो एक चीफ जस्टिस की मुतलकुल अनानियत कायम थी और उनको जो लामहदूद इख्तियारात हासिल थे, उन लामहदूद इख्तियारात पर खुद ही अपने फैसले के जरिए छुरी चला दी है और सुप्रीम कोर्ट को भी डेमोक्रेटाइज कर दिया है और चीफ जस्टिस की जो एक आमरियत थी वो खत्म कर दी है। अगर मैं इसको सियासी वाकयात के तनाजुर में और पाकिस्तान की सियासी तारीख के तनाजुर में अगर मैं इस फैसले को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस फैसले के बाद जस्टिस मुनीर की जो डॉक्ट्राइन है और जो जस्टिस मुनीर का जो साया है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट पे जो साल से कायम था, वो आज खत्म हो गया है और जस्टिस कॉर्नेलियस की जो रवायत है उसको मजबूत किया गया है और पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है उसको तस्लीम किया गया है। और आज के फैसले के बाद बहुत से दीगर फैसले जो हैं वो भी, उनकी भी हम तवक्को कर सकते हैं। बहुत सी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी हैं, कुछ केसेस जो है वो ज़ेरे अल्तवा हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उनकी ना प्रोसीडिंग हो रही थी ना उनका फैसला हो रहा था, खास तौर पे कि इलेक्शन जो है वो कब होना चाहिए, 90 दिन के अंदर होना चाहिए या बाद में होना चाहिए। तो ये आज एक बहुत अच्छा फैसला है, अली जफर साहब ने भी इसकी तारीफ की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का जो असल इम्तिहान है वो आज के बाद शुरू हुआ है। ये एक रुकावट थी उनके रास्ते में, जो अपीलें थी वो एक रुकावट की सूरत में उनके सामने खड़ी थी, वो रुकावट अब हट गई है और अब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं उनको आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को चलाने में उनको कोई रुकावट दरपेश नहीं होगी। और क्योंकि वो कहते हैं कि मैं आइन और कानून के मुताबिक चलूंगा, तो अब देखना यह है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो अब जस्टिस कॉर्नेलियस के रास्ते पे चलते हुए पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती कायम करने में कैसा किरदार अदा करते हैं। ठीक है, हामिद मीर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शाहज़ेब साहब, जिस तरह से अभी हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि इस फैसले से ऐसी रिवायत कायम हुई है जिसको डेमोक्रेटिक कहा जा सकता है, दूसरी जानिब अली जफर साहब का ये कहना था अच्छा फैसला है। दो चीज़ें से इस्टेब्लिश होती हैं कि एक तो जो अदलिया है वो कानून की तशरीह करेगी और साथ ही साथ आइनी तरमीम के जरिए ये होना चाहिए था, आइन के अंदर रहते हुए कानून को बनाना चाहिए था, वो पार्लियामेंट का काम है। तो आप इन दोनों चीजों को कैसे देखते हैं? देखिए जी, एक तो जाहिर है बहुत अहम फैसला है और अली जफर साहब की बिल्कुल यही पोजीशन थी कि आइनी तरमीम के जरिए कर दीजिए, ना कि कानून साजी के जरिए, वरना जो बुनियाद है इस कानून साजी की उससे अली जफर साहब भी इत्तफाक कर रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म्स हैं उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अब ये जो फैसला आया है, देखिए इसमें सबसे पहले तो तारीफ बनती है जैसे काजी फाइजा साहब की, क्योंकि हमने इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद खास तौर पर फिर हमने देखा कि कैसे कैसे चीफ जस्टिस आए, जिसमें जस्टिस साकिब निसार जैसे भी चीफ जस्टिस शामिल थे, फिर जस्टिस आसिफ सईद खोसा, फिर उमर अता बंदियाल,
जो इख्तियारात को अपने हद तक मरकूज करने के माहिर थे, इख्तियारात देने को तैयार नहीं थे, इस हद तक देने को तैयार नहीं थे कि बाद में अपने साथी जजेस पर भरोसा करने को तैयार नहीं थे, और ना फुल कोर्ट का इजलास बुलाते थे, ना फुल कोर्ट बनाते थे। हम ख्याल जजेस का कॉन्सेप्ट जहन में आया, यानी कि अदलिया की आज़ादी अदलिया के अंदर से मुतासिर हो रही थी, मगर एक चीफ जस्टिस आते हैं जो अपने इख्तियारात देने के लिए राजी थे, वो एक फुल कोर्ट बनाते हैं, आते ही फुल कोर्ट इजलास बुलाते हैं, बराह रास्त नशरियात करते हैं और समाअत के दौरान इस बात पर इसरार करते हैं कि भाई मैं नहीं बनना चाहता मास्टर ऑफ द रोस्टर, मैं तैयार हूं इस बात के लिए कि मेरे इख्तियारात को दिया जाए। और उसके बाद ये फैसला आता है, और इस फैसला 10-5 से आता है, तो वो जजेस जिन्होंने मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बनना है और जिन्होंने इसके हक में फैसला दिया, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब शामिल हैं, जिसमें जस्टिस याया अफरीदी साहब शामिल हैं, वो भी तारीफ के मुस्तहिक हैं, क्योंकि मुस्तकबिल में उन्होंने अपना ये जो राइट है कि वो मास्टर ऑफ द रोस्टर होते, वो मुतल्लिकुल अनानियत होती उनकी, उनका पास पूरा का पूरा इख्तियार होता, उन्होंने अपना इख्तियार पार्लियामेंट को दिया है। पिछले हमने इफ्तिखार चौधरी साहब के जमाने से तो ये देखा कि जुडिशरी ने पार्लियामेंट का पूरा इख्तियार ही अपने पास ले लिया था, सिर्फ और सिर्फ कानून साजियां नहीं बल्कि आइन साजी भी अगर की गई 17वीं तरमीम के जरिए, तो उसमें भी पार्लियामेंट को मजबूर किया गया कि जी आप अदलिया के मामलात में क्यों मुदाखलत कर रहे हैं, इसमें तरामीम कीजिए, और वो तरामीम करनी पड़ी। आपने मुल्क के वजीर आजम को जो करोड़ों अवाम का वोट लेके आता है उसे पाबंद किया कि आप अकेले फैसले नहीं करेंगे बल्कि काबीना के तहत फैसले करेंगे, मगर चीफ जस्टिस साहब खुद अपने इख्तियारात में कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं थे, उन्हें बांटने को तैयार नहीं थे, अपने जजेस पर भरोसा करने को तैयार नहीं थे। और जस्टिस उमरता बंदियाल ने तो सारी हदें ही मेरा ख्याल है क्रॉस कर दी थी, जिस तरीके से उन्होंने जुडिशरी को तकसीम करके रख दिया था, तो बड़ा क्रेडिट है जैसे काजी फाइजीसा का। एक और बात भी आज के फैसले में नजर आती है हमें, ये हम ख्याल जजेस का और फिर एक ही जैसे फैसले देने का कॉन्सेप्ट नजर आ रहा था। देखिए आज जो मुख्तलिफ शिकें थी उसमें अगर एक शिक ये थी कि अकेला चीफ जस्टिस फैसला नहीं करेगा बल्कि 3 सीनियर जजेस फैसले करेंगे कि बेंच कैसे बनना है, तो वो फैसला 10-6 का है। तो अपील का हक देने का फैसला 184(3) के जरिए वो 9-9-6 का है, यानी जजेस ने अगर एक तरफ 10-5 पर से फैसला दिया है तो दूसरी शिक पर 9-6 से फैसला दिया है। फिर एक और फैसला कि माजी से इतलाक होगा या नहीं होगा वो 8-7 से है, यानी मेजॉरिटी जजेस ने इस बात की मुखालफत की है। यही तो खूबसूरती है जुडिशरी की कि जजेस के दरमियान इख्तिलाफ राय हो, ना कि आपस में ऐसा इख्तिलाफ हो कि धड़े बन जाएं। आज नजर आया है कि जो धड़ेबाजी शुरू की थी जैसे उमरता बंदियाल साहब ने, उसमें जो दूसरी तरफ के जजेस थे वो एक धड़ा नहीं बनाया हुआ था उन्होंने, बल्कि वो आइन और कानून के साथ खड़े थे। और नजर आता है कि एक तरफ वो 10-6 से फैसला दे रहे हैं, तो एक फैसला वो 10-5 से फैसला दे रहे हैं, तो दूसरा 9-6 से और तीसरा 8-7 से, यानी जजेस में इख्तिलाफ राय है, उनकी अपनी एक आजाद राय है। दूसरी तरफ जाहिर है वो जजेस हैं जो मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बनेंगे, मोहतरम जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस आयशा साहिबा, वो समझते हैं कि चीफ जस्टिस के पास ही इख्तियार रहना चाहिए था और ये इख्तियार पार्लियामेंट को नहीं है कि वो इस हवाले से कानून साजी करती, बल्कि ये इख्तियार खुद सुप्रीम कोर्ट को है कि वो अपने कानून बनाती और उनमें तरामीम करती। मगर मसला यह है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने पहले भी जजमेंट में लिखा था कि चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं उनमें गौर होना चाहिए, मगर जस्टिस उमरता बंदियाल साहब ने ना कभी फुल कोर्ट का इजलास बुलाया, ना इनमें तरामीम करने की कोशिश की। तो एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट खुद अपने जो रूल्स थे उनमें तरामीम करने को तैयार नहीं थी, पार्लियामेंट को तरामीम करने नहीं दे रही थी। पार्लियामेंट कानून साजी करती थी तो उसे स्ट्राइक डाउन करती थी, अगर आईनी तरमीम भी करती थी तो उसमें मुदाखलत करती थी, वो हुकूमत को काम करने नहीं देती थी। आज हमें सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा तौर पर 10-5 की अक्सरियत से एक फैसला मिला है जिसमें पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को माना गया है, जिसमें पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम किया गया है। एक चीफ जस्टिस और मुस्तकबिल के 2 चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात अपने साथी जजेस के साथ जो कि सीनियर हैं उनके साथ शेयर करने पर तैयार हुए हैं और पार्लियामेंट की कानून साजी के जरिए तैयार हुए हैं। मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा दिन है मुल्क के लिए। शाहजेब साहब बहुत शुक्रिया। हम बैरिस्टर अली जफर साहब की जानिब आएंगे। बैरिस्टर साहब ये समझाइएगा, अब तो फैसला आ चुका है, जो एक्ट है वो क्या कहता है कि अगर 184(3) के तहत कोई फैसला सुनाया गया, अब उसके खिलाफ जब अपील की जाती है तो क्या उससे बड़ा एक बेंच सुनेगा उस फैसले को, उस अपील को? हमारे नाज़रीन को समझाइए। जी बेसिकली ये कानून ये कहता था कि अगर एक आर्टिकल 184(3) जिसको आप कई बार सो मोटो भी कहते हैं या डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स की पिटिशन किसी पिटिशनर ने की है, जो भी फैसला आर्टिकल 184(3) के तहत किया गया हो उसके तहत अपील आपको फराहम की गई है। जो अपील सुनी जाएगी मुख्तलिफ जजेस के पास, यानी वो जज नहीं जिन्होंने फैसला किया था आर्टिकल 184(3) के तहत, बल्कि
उनसे एक लार्जर बेंच और मुख्तलिफ जजेस के सामने। तो ये एक, जिसका मैंने कहा कि एक अच्छा कानून था या है, जिसके अंदर आपके पास एक प्रॉपर राइट ऑफ अपील है, यानी जिस तरह एक अलग सी आप बेंच के सामने दोबारा से बहस कर सकेंगे और आप बता सकेंगे कि ये जो फैसला हुआ था इससे पहले उसमें क्या खराबियां हैं। तो ये पोजीशन थी, इसको अपहोल्ड किया गया है। लेकिन मेरा ख्याल है जब डिटेल फैसला आएगा तो उससे जाहिर होगा और वजूहत समझ आएंगी कि जो उसका इफेक्ट है पुराने केसों पे, वो मेजॉरिटी ने शायद कहा है कि इसका इफेक्ट पुराने केसेस पे नहीं होगा, इसका इफेक्ट इस कानून का आने वाले केसेस पे या प्रेजेंट केसेस पे होगा, हाल वाले केसेस पे। ठीक है, हम हामिद मीर साहब की तरफ जाते हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है जाहिद इब्राहिम साहब ने भी, जो कि इसी केस में काफली की तर्जुमानी कर रहे थे। आपकी तरफ आएंगे जाहिद साहब। हामिद मीर साहब, यही बात जो अली ज़फ़र अभी डिस्कस कर रहे थे कि फैसला साजी के हवाले से आपको लगता है कि शफाफियत का एक नया दरवाज़ा खुलता है कि जब अपील के लिए मुख्तलिफ जजेस पर मुश्तमिल एक बड़ा बेंच होगा जिनके पास अपील जाएगी? देखिए, बिल्कुल अली ज़फ़र साहब ने दुरुस्त कहा, लेकिन सिर्फ शफाफियत का दरवाजा नहीं खुला, एक दरवाजा खुला है, एक दरवाजा बंद हो गया है। और वो जो दरवाजा बंद हुआ है वो ये है कि माजी में पाकिस्तान की जो आला अदलिया है और ख़ास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट है, इसको मुख्तलिफ तरीकों से सियासत में मुलव्वस किया गया, इसको पोलिटिसाइज किया गया। तो जो सुप्रीम कोर्ट की जो पोलिटिसाइजेशन का जो दरवाजा है वो काफी हद तक बंद हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पोलिटिसाइज करने के लिए और उसको मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ एक चीफ जस्टिस जो है उसको मैनिपुलेट कर लेते थे। और चीफ जस्टिस जो है वो 184(3) के तहत जो उसके पास लामहदूद इख्तियारात थे, जो किसी डिक्टेटर के इख्तियारात के बराबर हैं, तो वो उन इख्तियारात के जरिए अपनी मर्जी के मुताबिक बेंचेस बनाता था, अपनी मर्जी के मुताबिक किसी केस को लगा दिया, मर्जी के मुताबिक किसी केस को नहीं लगाया। तो वो जो एक, मैंने पहले भी कहा कि चीफ जस्टिस की जो एक डिक्टेटरशिप थी वो खत्म हो गई है और शफाफियत का तो दरवाजा खुला है, लेकिन साथ ही साथ जो अदलिया को पोलिटिसाइज करने का दरवाजा था वो दरवाजा बंद हो गया है। तो एक दरवाजा खुल गया, एक बंद हो गया। और मैं ये जरूर कहूंगा कि पिछले जो कुछ चीफ जस्टिस साहिबान थे, 3-4 चीफ जस्टिस साहिबान, उन्होंने ये जो अपने लामहदूद इख्तियारात थे, उन इख्तियारात के जरिए उन्होंने जुडिशरी को पोलिटिसाइज किया। और अनफॉर्चुनेटली जो उनके फैज याफ्ता जज साहिबान हैं, वही फैज याफ्ता जज साहिबान कोशिश कर रहे थे कि ये जो चीफ जस्टिस की जो मतलकुल अनानियत है, उसकी जो डिक्टेटरशिप है, वो खत्म ना हो। लेकिन आखिरकार मैं फिर कहूंगा कि आज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस मुनीर का भूत जो है उसको सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस ने इस फैसले के जरिए निकाल बाहर किया। बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी दौरान माहिर कानून जाहिद इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। बड़ा फैसला है, एक जाने पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को तस्लीम किया गया है आइन के अंदर रहते हुए, उसके साथ साथ शफाफियत का दरवाज़ा खोला है। हमने देखा ये जो प्रोसीडिंग्स हुई ये बराह रास्त नशर की गई ताकि पता चले कि किस तरह कार्रवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में। आप कैसे देखते हैं? जी, मैं समझता हूँ कि ये एक्चुअली एक बहुत मुश्किल फैसला था और यकीनन खुशाइंद है। आपने पूरे मुल्क ने देखा कि किस तरह से मुख्तलिफ आवाज़ें सुप्रीम कोर्ट की बेंच से एक मुख्तलिफ उनके पर्सपेक्टिव थे। लेकिन मेरी नज़र में सबसे अहम 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो यकीनन शफाफियत अब आएगी आगे जाते हुए, और हमें ये भी देखना है कि जो 184(3) से जो नुकसानात हो रहे थे, आप स्टील मिल्स का केस देख लें, आप रेकोडिक का देख लें, कार के देख लें, उससे ये कोई हवा में बात नहीं हो रही है कि कुछ नुकसान हुआ है। इसमें हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा था। और आप क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कोई चेंज नहीं आ रहा था, इसलिए पार्लियामेंट को ये कानून साजी करनी पड़ी। और उस कानून साजी करते हुए उन्होंने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखा कि ये जो आवाज़ें हैं रिफॉर्म की, ये बार एसोसिएशंस ने उठाई हैं और कई सालों से उठाई जा रही हैं, और इसलिए ये कानून साजी हुई। और ये यकीनन एक बहुत खुशाइंद बात है कि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने आज अपहोल्ड किया है।
अच्छा जाहिद साहब, इस कानून के अब अगर इतलाक की बात की जाए तो माजी से इस कानून का इतलाक नहीं होगा, इस पर 8/7 से ये फैसला आया है। तो अगर कुछ हम सियासी शख्सियात की हम बात करें जिसमें नवाज शरीफ साहब हैं, जहांगीर तरीन साहब हैं, तो उनके कानूनी मामलात के हवाले से आप कैसे देखते हैं इस फैसले को, ये हमें ज़रा समझाइएगा। देखिए, जो अभी तक ये बात हो रही थी, उनके अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनका ये ख्याल था कि ये जो अमेंडमेंट है, जहां तक इसको रेट्रोस्पेक्टिव किया गया था, वो तो देखें, अगर आप पार्लियामान में भी देखें तो ये शुरू में ये शिक शामिल नहीं थी। ये तो मोहसिन दावर साहब ने इसको शामिल करवाई थी, और इसको अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस शिक को तो कलअदम करार दे दिया है, तो उससे मैं नहीं समझता हूं कि एक या दो शख्सियात या सियासतदानों की बात है, ये मुल्क के लिए एक बहुत खुशाइंद बात है। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ अली जफर साहब भी मौजूद हैं। अली जफर साहब, आप बताइएगा इस सूरत हाल में कि जब अब तय कर लिया गया है कि जब फुल कोर्ट कोई फैसला सुना देगी तो उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती, आप कितने मुतमईन हैं? देखें, वो तो यकीनी तौर पे ऐसा ही होगा प्रैक्टिकली। ये एक प्रैक्टिकल बात है कि अगर 15 जज साहिबान हैं और 15 जज फैसला कर रहे हैं तो फिर अपील किसके सामने जाएगी? अगर वो सारे 15 ही उधर हैं तो फिर अपील तो नेक्स्ट लेवल पे जा ही नहीं सकती। इसलिए वो तो एक प्रैक्टिकल बात है और मेरा ख्याल है उसमें कोई शक नहीं है कि अपील, अगर 15 के 15 जजेस ने एक फैसला कर दिया तो उसके बाद उनके पास अपील की गुंजाइश नहीं रहती। इसी तरह अगर वो एक नंबर गेम है और मेरा ख्याल है उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर ये 3 जजेस, 5 जजेस, 7 जजेस करेंगे फैसला तो फिर एक लार्जर बेंच के पास आप जा सकते हैं। तो ये नंबर्स के मुताबिक मेरा ख्याल है रूल्स फ्रेम कर देने चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। हो सकता है फैसला जब तफसीली फैसला आए उसी में ये चीज क्लैरिफाई हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अली जफर साहब बैरिस्टर हैं, माहिर कानून, हमारे साथ मौजूद थे। हामिद मीर साहब सीनियर तजियाकार, जाहिद इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन तीनों अफराद का बहुत शुक्रिया।